सबसे बड़ा बाय होएगा M&M। देखिए सेल्स ऑफ ऑटोज वेदर ट्रैक्टर्स और सीवीज आर गोइंग टू सी एक्सट्रीमली गुड नंबर्स गोइंग इनटू द नेक्स्ट मंथ और ऑटो सेल्स आर गोइंग टू जूम। सो M&M हैज बीन एन आउट परफॉर्मर। 760-65 में लीजिए। अब ट्रेडिंग स्टॉप लॉस इसमें मुश्किल है क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट है। मैं अभी भी सोचता हूँ M&M की फेयर वैल्यू बाय दिस दिवाली 1000 रुपए, 4 फिगर्स आपको दिख जाएगी। सो यू वांट टू कीप अ स्टॉप लॉस और यू डू अ सिप फॉर द नेक्स्ट 18 days। दैट्स माय सजेशन। सेकंड बाय वुड बी ITC। लास्ट टाइम दिस पैंडेमिक ITC was the largest gainer in sanitizer and home products. Their portfolio has expanded. Their margins in their FMCG business are going to be record. Or cigarette smoking will only increase in this type of stress. So I think 207 is a very good number to get into ITC. I am looking at a target of 245. You can keep a stop loss closer to 202, 203, but do a sip for the next 18 days. यहाँ पर भी वीकनेस, आज जो ब्रेकडाउन हुआ है, गैप डाउन हुआ है, पॉसिबल है कि 360 देखने को मिले और भी लोअर लेवल देखने को मिल सकता है। आज के दिनों में स्टॉप होगा 390 का LIC में। तो ITC और LIC में शॉर्टिंग साइड में ध्यान होना चाहिए। शॉर्ट साइड की पोजीशंस पर फोकस कीजिए। गाबा साहब ने साफ कह दिया और शायद 14,000 के नीचे के स्तर भी आगे देखने को मिलेंगे। भसीन साहब को जोड़ लेते हैं। भसीन साहब, आप पिछले हफ्ते तक तो काफी बुलिश थे कि डिप्स पर खरीदना चाहिए, लेकिन आज बाजार में दरअसल घबराहट काफी ज्यादा बढ़ गई है। हमारे सहयोगी कह रहे थे कि किसी ना किसी रूप में एक लॉकडाउन जरूर आएगा क्योंकि चेन रोकना चाहती है महाराष्ट्र की सरकार एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी प्रेशर आ रहा है। उस प्रेशर को कम करने के लिए लॉकडाउन होगा और किसी चीज के लिए नहीं। ऐसे में क्या अप्रोच रखी जाए, क्या करे ट्रेडर्स इस समय? Good afternoon, Archita. So the real chaos is not here. The real chaos is in Bengal और in हरिद्वार जहाँ कुंभ है, वहां पे है मास स्प्रेडिंग। बॉम्बे में तो ऐसा कुछ नहीं है। और अभी भी मुझे लगता है कि इट इज अ फर्स्ट रिएक्शन वेयर द फेटिलिटी इज मच लोअर। एनीवे, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ना मैं इस पे सजेशन दे सकता हूँ। मेरे को लगता है ये सारा लॉकडाउन वगैरह जो आना है 2-3 दिन में, ये सास बहू की कहानी जो आपके चीफ मिनिस्टर खेल रहे हैं, ये 2-3 दिन में बंद हो जाएगी। और मुझे लगता है ये सारा कुछ मार्केट में प्राइस इन करता है। So I think by this weekend, by the 15th, 16th, you will have priced in all negatives. Now, whether you go to 13,700 or 14, these are panic levels. These will not come because of a panic. And the panic is priced in. Look at the headlines. Metals are down 3% because China says we will release fresh reserves of copper and aluminium, which is a very, very bullish sign for low inflation and for autos. So I think if I hear Mr. Rajiv Bajaj, who's a pioneer, he says there is no slowdown. We are in fact looking just for our supply-demand chain to be active. So take it with a pinch of salt. I'd rather rely on Mr. Rajiv Bajaj and his outlook than on the market situation. I have 3 buys here, but again, if you can't digest the volatility, then stay out, but don't sell in this panic. I am suggesting for the next 18 days, 3 stocks which you must do a sip, and we'll again go back to these stocks on 30th of April, where the levels will be much higher. If you can say, I will start those 3 stocks. जी सर, बोलिए। So first would be unquestionably Mahindra & Mahindra, the largest play, which according to me this year will be in 4 figures. And Mahindra is going to be a smart outperformer, not on the back of the tractor, but the SUVs which are newly launched. Secondly, if we see a fall in metals, then automatically the margins will be 740, 741 mein lijiye. Keep a stop loss of 725, but look for targets of 875 at least. Now these are delivery trades which for the 18 days you must buy every day. Second would be ITC. Unquestionably the largest player now in FMCG, where margins are going to expand. Cigarette volumes will only see an uptick. So at 205, you have a very good chance of making at least a 10% upside. 235 to 240 would be my ultimate target in the next 3 months. Third would be a bank where, again, I think there is a very good opportunity. RBL Bank, 205.7 is its book value. You're getting it first time in 1 year under its at 0.9 time price to book. This is one of the best retail franchises which is growing very rapidly. Cost of money is low because they raise capital and they don't need capital. And I think NPAs are overblown that there will be any pressure. So at 185, 186, buy it. Keep a stop loss 175. Look for targets of 245 to 250. Again, my recommendation: do a sip for the next 18 days, and you'll have priced in all the greed and fear. ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए 3 टॉप ट्रेड्स और ये थोड़ा सा अगले 15-20 दिनों की स्ट्रैटेजी आपको भसीन साहब दे रहे हैं कि इस गिरावट में फायदा उठाए। डिप्स पर कुछ शेयर लेने हैं। M&M, ITC और RBL बैंक, उनको वैल्यू ट्रेड्स दिखाई दे रहे हैं, जहां पर धीरे धीरे करके आप पोजीशंस बढ़ा सकते हैं। भसीन साहब, स्वागत है आपका।
आज अनफॉर्चुनेटली निफ्टी आपकी बात नहीं सुन रहा, लेकिन बहुत बढ़िया मौका दे रहा है उस समय का जिसका इंतजार कम से कम बहुत बढ़िया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को आता हुआ दिखता है। अच्छा समय और अच्छे प्राइसेस कभी भी बाजार में साथ नहीं जुड़ते। आपकी रणनीति आज के लिए? गुड आफ्टरनून। तो बिल्कुल आपने सही टिप्पणी दी, फियर एंड ग्रीड गो हैंड इन हैंड। अब अगर आपको मौका नहीं लोगे तो फिर क्या वेट करोगे? इसके बाद अगर 500 पॉइंट भी घट गया आपसे लिया ही नहीं जाएगा। सो डोंट वेट फॉर इटर्निटी। इस हफ्ते कोविड की पीक हो जाएगी, लिख के ले लो, 17 और 20 तारीख में कोविड की पीक हो जाएगी एंड देन यू विल बी रिपेंटिंग। जितने फॉरेन ब्रोकरेजेस आपको अपग्रेड करने थे अर्निंग्स, अब वो आधे % से घबराहट में है। दीज आर ऑल एडवेंचरस कॉल्स। व्हेन एट 37,000 यू आर बुलिश, एट 30,000 you're bearish. You can't go wrong. This is the time to buy banks. As a disclosure, today we have booked profit in some of our top holdings in Sun, Lupin, Cipla and Divi's Lab, and we have bought ICICI, Axis, and my top pick for this year is RBL Bank. So this is the time to put your money where your mouth is. Get into banks, get into autos. आप सुन ही रहे हो कि मेटल्स में चाइना इज गोइंग टू रिलीज द रिजर्व्स, व्हिच मींस दैट मेटल प्राइसेस घटेंगी तो इनपुट कॉस्ट फॉर ऑटोज विल बी वेरी वेरी स्ट्रांग। साथ में अगर आप राजीव बजाज को सुने तो वो कहते हैं देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन बजाज ऑटो अर्निंग्स एंड दिस इज अ पासिंग स्टॉर्म। तो जैसे आपको कहा, आपने कहा शैलेंद्र जी, भाव और सर्कमस्टांसेस कभी साथ साथ नहीं आते। फियर है तो तभी मेरे को लेने। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये हफ्ता है जो बॉटम बनना है। I am very very bullish on the market in from next week onwards or maybe the next 3-4 days. आज के लिए मेरे 2 पिक्स हैं और मैं कह रहा हूँ 17 दिन का सिप कीजिए। M&M में 745 पे स्टॉप लॉस रखना है, 725 का रखिए, 875 का टारगेट। और RBL 0.8 टाइम प्राइस टू बुक, जो ये 1 साल में एक बार मौका देता है, इस भाव पे 185 पे लीजिए, 175 का स्टॉप लॉस, 245 का टारगेट। 17 दिन के लिए शैलेंद्र जी सिप कीजिए। 30 अप्रैल को फिर आपसे भेंट करेंगे क्या आपकी सिप की एवरेज पड़ी जी। भसीन साहब, ये 17 दिन की कोई चौकड़ी है क्या जो आप बताते हैं? सर इसलिए कि कोविड के केसेस एक बार पीक करके घटे भी तो फिर भी लेफ्ट आउट सेलिंग आएगी। जिनको ग्रीड और फियर दिखता है वो तो आपको पता है क्या, कैसे आपको पता है एफआईएस की नोशन क्या है। एक बार बेचने में आएंगे ETF तो वो डेली आपको इस तरह 500,000 करोड़ का माल, तो ये आपको, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बॉटम बनने में 10 दिन लग सकते हैं। बट जब मैं चाल ऊपर की कहूंगा तो आपको एक 16-17 दिन में एक जो जिसमें कहते हैं ना सबसे वर्स्ट टाइम में आपके एवरेजेस हो जाएगी। तो इफ यू फॉर दिस 16-17 days इफ यू बाय एवरी डे यू विल गेट अ गुड प्राइस एंट्री पॉइंट एंड देन यू विल रीप द बेनिफिट्स ऑन द 30th। अब संजीव जी, आपकी रणनीति बैंक्स पर, जब से यतिन जी की कहानी चली है आप देखिए बिकवाली ही बिकवाली दिख रही है। दिन का न्यूनतम लेवल 843 टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता और खासकर JSW स्टील, JNSPL। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर दिखाइए। ये जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स शायद रिलीज हो इन प्राइसेस को कूल डाउन करने के लिए, आपको लगता है ये हकीकत में तब्दील हो सकते हैं? No, I think that it is best to stay away from metals. They've already doubled, tripled. Now we were very bullish on Hindalco and Tata Steel and JSW Steel, but they have tripled from there. अब बैंक्स में लेने की बारी है सर। बैंक्स में इतना कैपिटल है, साथ में दिस इज अ टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल पुट देयर बैक बिहाइंड देम एंड thirdly there is a pre-notion that everything closes down. This time the COVID is not going to be taken so badly by people. Secondly, Shailendra ji, I tell you, people are so fed up of staying home कि जो ये 1 महीने बाद वापसी आएगी ना, वो रिवेंज स्पेंडिंग में ऐसा बैंक्स को आएगा कि आप समझ नहीं सकते कैसे क्रेडिट एक्सपैंड करेगा। इस कारण से एज ए डिस्क्लोजर हमने सन, लूपिन, डीवीज लैब और सिप्ला में आज हमने सेल करके ICICI, एक्सिस और RBL ये तीनों को ऐड किया है। We have also added M&M and ITC. We think these 5 shares are now very well poised to give you a 25 to 30% upside in the next few months. So this is the time to put your money where you want to rotate your stocks. Don't get caught in the greed and fear. At 30,000, there is hardly any downside in the bank nifty. In fact, there may be a 10% upside if you are caught on the wrong side in the next 2 weeks.